حضرات، ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بکریاں چر رہی تھیں اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ایک شخص کا گزر ہوا، اس شخص نے کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہے جو خوخار درندہ ہے، بھیڑیے کی نگاہ بکریوں کی طرف تھی اور اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھا، کبھی نگاہ وہ شخص بکریوں کی طرف کرتا ہے، کبھی وہ شخص اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرتا ہے۔ اویس قرنی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں مشغول، اور جب بکریوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ جو بھیڑیا تھا، خونخوار درندہ تھا، جو بکریوں کا دراصل دشمن تھا، ماंس کھانے والا جانور تھا، اس نے کبھی بھیڑیوں کو دیکھتا، کبھی ایک مرتبہ اویس قرنی کو دیکھتا۔ حضرت اویس قرنی کی قریب آیا اور آنے کے بعد کہا، جیسے ہی اویس قرنی فارغ ہوئے اللہ کی عبادت سے مشغول تھے، آپ کو بتایا، حضور کیا تمہیں اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ اویس قرنی نے کہا، کہاں ہیں؟ کہا، فلا دیکھیے آپ کی بکریاں چر رہی ہیں اور وہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کو گردن گھما گھما کر دیکھ رہا ہے، کہیں حضور ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور وہ بھیڑیا تمہاری بکریوں کو لے جائے۔ تو اویس قرنی کا جواب سنو پیارے مسلمانوں، کون اویس قرنی ہے؟ یہ وہ اویس قرنی ہے جو اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے مدینہ پیدل ہی بھاگ گئے تھے، قافلے کو بیچ میں چھوڑ دیا تھا۔ اتنا کہا، اویس قرنی نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کان کھول کر سن لے، میری بکریوں کو نہ بھیڑیے سے ڈر ہے، نہ مجھے اس بھیڑیے سے مجھے ڈر ہے۔ تو کہا، کیوں نہیں ہے؟ تو اویس قرنی فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، تو کائنات میں جتنی دنیا میں جانور ہیں، پھر وہ جانور اس شخص سے ڈرنے لگتے ہیں۔ میرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے اور مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمانے والا ہے اور میری بکریوں کی بھی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اتنا کہا حضور میں سمجھ گیا کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پوری دنیا پھر اس سے ڈرنے لگتی۔ یہ اویس قرنی ہے پیارے مسلمانوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مولا علی بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک دیوانہ ہے میرا جس کا نام اویس قرنی ہے، کرد کا رہنے والا ہے، بال بکھرے رہتے ہیں، وہ میرے عشق میں ڈوبا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اس شخص کو، جب اویس قرنی کو جب اتنی محبت ہے تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ سوال ہوتا نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کے آگے ایک مجبوری ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا مجبوری ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک اس کی ماں ہے جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، وہ اپنی ماں کا کہنا مانتا ہے، عاشق میرا ہے، مجھے مانتا ہے، اور یہی نہیں، جب لوگ حج سے یہاں سے حج کرنے کے بعد میں جاتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی ماتھے کو چومتا ہے، وہ ایسا عاشق ہے۔ کہا، حضور اس کی ماں نابینا ہے؟ کہا، ہاں نابینا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے، پیر دبا رہے تھے، جب صبر کا دامن ٹوٹ گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ظاہر ہوئے، اور ہونے کے بعد میں ان کی ماں کے قدموں پہ گر گئے۔ آپ کی آنکھ میں سے آنسو ٹپکے، اور ٹپکنے کے بعد میں ماں کے پیروں پر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے پوچھا، اے اویس کیوں روتے ہو؟ یہ کس کی ممتا ہوتی ہے؟ یہ سب سے بڑا اگر ڈاکٹر تمہیں دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھ لو۔ ماں کا دل پہلے ہی کہنے لگتا ہے کہ آج میرا بیٹا پریشان ہے۔ اے نوجوانوں، ماں کی قدر کیا کرو یار۔ ماں کیسے پہچان لیتی ہے کہ میرے جگر
जिगर के टुकड़े को परेशानी है, मेरे लखते जिगर को परेशानी है, मेरे चांद को परेशानी है। जैसे ही आंसू टपका है, पैरों पर गिरा है, वैसे करनी की माँ ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? वैसे करनी कहते हैं ए माँ मुझे नबी की याद सताती है, मुझे नबी की याद सताती है, अगर आज ना गया तो पता ना क्या हो जाएगा, मेरा सीना फट जाएगा। माँ ने इजाजत दी, बेटा मैं तुझे इजाजत देती हूँ जा, लेकिन सुन तो ले, एक काम करना है। कहा माँ मैं तेरा कहना मानता हूँ, आज भी कहना मानूंगा। तो कहा बेटा सुन तो सही उवैस, तू नबी का दीदार करने के लिए चला जा, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन बेटा सूरज डूबने से पहले पहले आना है, सूरज डूबने से पहले पहले आना है। वैसे करनी ने तैयारियां की हैं, रातों रात में माँ के जो इंतजामात थे, खाने का इंतजाम किया, माँ को बता दिया कि खाना वहाँ रखा है, पानी वहाँ रखा है, फला चीज वहाँ रखी है, ये चीज वहाँ रखी है। होने के बाद में अब काफिले के साथ में मदीना शरीफ जाने की तैयारी है। काफिला चलने लगा, जैसे ही काफिला एक जगह ठहर गया, वैसे करनी का इश्क इतना था कि उन्हें मालूम था कि सूरज डूबने से पहले पहले मुझे अपने घर आना है, सूरज डूबने से पहले पहले माँ का हुक्म मानते, माँ का हुक्म के मुताबिक मुझे घर वापस आना है। वैसे करनी ने काफिले को छोड़ा और पैदल भागना शुरू कर दिया। अब पहुँचे कहाँ हैं? मदीने के हिलाल आमिना के लाल के शहर में पहुँच गए, मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। और पहुँचने के बाद में सबसे पहले पहुँचे हैं तो देखते क्या हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे के कभी माथे को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी उनके हाथ को चूमते हैं, कभी बोसा देते हैं, कभी प्यार करते हैं और कहते हैं कितने खुशनसीब बच्चे हो, जिस नबी से मैं मिलने आया हूँ उस नबी को तुम रोज देखते हो, उस नबी के पीछे नमाज भी पढ़ते होगे, उस नबी को तुमने करीब से देखा होगा, उस नबी को तुमने छुआ होगा। ये इश्क की तो बदौलत है प्यारे मुसलमानों। नबी से कैसा इश्क था वैसे करने को। आज एक हम तो त्योहारों को भी हलवे के नाम से जानते हैं, कूड़े आ जाएं तो कूड़ों के नाम से हम खाने पीने की चीजों को जानते हैं, लेकिन वैसे करने का इश्क अभी आज तक हमने वैसे करने की दास्तां हमने न सुनी, वैसे करने से मोहब्बत हमने नहीं की, बस नाम से जानते हैं, हलवे से जानते हैं। और पता ये है कि हलवे से इसलिए जानते हैं कहीं कोई ऐसा ना हो कि हमें ये कहते तुमने फातिहा क्यों ना लगवाई। ए नौजवानों कान खोल कर सुनो, फातिहा लगवाना जरूरी नहीं है, पंजगाना नमाज पढ़ना जरूरी है, ज़कात देना जरूरी है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी दौलत दी है कि तुम हज कर सको, तो अल्लाह की तरफ से हज करना फर्ज है, तुम पर हज फर्ज है। तुम नमाज भी रखो, रोज़ा भी रखो, हज भी अदा करो, ज़कात भी अदा करो। कसम खुदा की मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा और मदीने वाले मुस्तफ़ा को पैदा करने वाला भी राजी हो जाएगा। वो वैसे करनी पहुंचे हैं मस्जिद नबवी में, दस्तक दी है तो अंदर से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं और आने के बाद में कहती हैं तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम वैसे करनी है, मैं नबी से मुलाकात करने आया हूँ। मेरे उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं अंदर आ जाओ। आप देखते क्या हैं, कभी सुतूनों को चूम रहे हैं, कभी मेरे नबी के बिस्तर को चूम रहे हैं। और होने के बाद में कहा बताओ तो सही नबी कहाँ हैं? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं ए नौजवान तू कहाँ से आया है? कहा मैं करन के रहने वाला हूँ, मुझे नबी से मुलाकात करनी है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं वो तो अभी अभी कहीं गए हैं। अल्लाहु अकबर, इतना कहा और सुनने के बाद में अब क्या था कि वैसे करनी के दिल पर बिजलियां गिर जाती हैं। जिस मकसद से आए थे वो मकसद ना पूरा हो सका, नबी को देखने के लिए आए थे लेकिन नबी का दीदार ना किया। लेकिन इधर ये हुक्म था, माँ का ये हुक्म था बेटा सूरज डूबने से पहले पहले आना। अल्लाहु अकबर, जब टाइम ज्यादा गुजर गया तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि जब मेरे नबी आ जाएं तो कहना कि करन से तुम्हारा उवैस तुमसे मिलने आया था। अल्लाहु अकबर, जैसे इतना टाइम हुआ जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए, अब ये वैसे करनी अपने घर की तरफ आने लगते हैं, यानी घर वापसी आने लगते हैं, घर की तरफ आने लगे। इतने में मेरे नबी अपने घर तशरीफ लाए हैं और लाने के बाद में मेरे नबी ने अपने सीने के बटन खोले और खोलने के बाद में जब लंबी लंबी सांसें ली हैं और इरशाद फरमाया ए आयशा बताओ तो सही क्या मेरा उवैस आया था? तो मेरे नबी ने जब इतना कहा ए आयशा क्या उवैस आया था? कहा हाँ आए थे, अपना नाम उवैसे करनी बता रहा था, करन के रहने वाला है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए आयशा जानती हो कौन था? कहा नहीं जानती। कहा वो मेरा बहुत बड़ा आशिक है, वो मुझे बहुत ही मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर, फिर मेरे नबी ने उमर फारूक को बुलाया, वो मौला अली को बुलाया, वो कहा जाओ उवैस को देख कर लाओ। अल्लाहु अकबर, जैसे ही उवैस करनी को देखने गए हैं तो वो जब मदीने की हद पार कर चुके थे, यानी कि मदीने का बॉर्डर पार कर चुके थे। अब जैसे ही घर आए हैं, रात का सन्नाटा था, हल्के से दरवाजा खोला और खोलने के बाद में ये माँ की ममता तो देखो प्यारे मुसलमानों, इतना सुनना था। और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद में माँ ने
पुकार उठा, क्या उवैस आ गए हो? कहा हाँ माँ आ गया हूँ। तो अब उनकी माँ कहती हैं, ए उवैस बताओ तो सही, मुस्तफ़ा देखने में कैसे लगते थे? उनका रुखसार कैसे रखते थे? उनके होठ कैसे लगते थे? ए मेरे बेटे मुस्तफ़ा की आंखें कैसे लगती थी? ए मेरे बेटे मुस्तफ़ा की पेशानी कैसे लगती थी? इतना कहा। वो कहने के बाद में रोने लगते हैं, और रोने के बाद जब वजह पूछी है, माँ ने कहा बेटा रोता क्यों है? तो कहा था माँ मैं जिस मकसद से मिलने गया था, मैं अपने नबी से मिलने गया था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा, और पहुंचने के बाद में मैंने नबी का पता पूछा कि नबी कहाँ हैं? तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया था, माँ क्या अभी अभी हुजूर तशरीफ कहीं ले गए हैं, लेकिन माँ मैं कैसे मिल के आता? माँ ने कहा बेटा मिल के आना चाहिए था। तो वैसे करनी कहते हैं, माँ कैसे मिल के आता? मैंने तुझसे वादा किया था कि सूरज डूबने से पहले पहले मैं तेरे पास आऊंगा, और मैंने तेरा वादा पूरा कर लिया है। वैसे करनी रोने लगते हैं। फिर आपकी माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, और उठाने के बाद में दुआ की, ए मौला जहाँ जहाँ तेरे नबी का जिक्र हो, पूरी कायनात तेरे नबी का जिक्र करेगी, तेरे नबी का नाम लेगी, वहाँ मुस्तफ़ा मेरे उवैस करनी का जिक्र करेंगे। एक दिन वो आया, उस्मान ने मौला अली और फारूक आजम से कहा जाओ देख कर लाओ, और लाने के बाद में सुनो तो सही, जाओ वैसे करनी जब कभी आए, हो सकता है अब मेरा दीदार न कर सकेगा, मैं विसाल कर जाऊंगा, वो मेरा दीदार न कर सकेगा। सहाबा से इरशाद फरमाया, ए सहाबा कान खोल कर सुनो, जब मेरा उवैस जब मदीना कभी आए तो उससे कह देना कि नबी की उम्मत के हक में दुआ कर दे कि अल्लाह ताला उसकी उम्मत के लिए उसकी उम्मत को बख्श दे। एक दिन वो भी आया, वैसे करनी को ये पता चला, वो करने के बाद में मुसल्ला बिछाया, वैसे करनी ने दुआ की, ए मौला मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने भेड़ के वालों के बराबर इतने गुनाहगारों को बख्श दिया है, नबी की उम्मत को बख्श दिया है। फिर हजरत वैसे करनी फिर दुआ करते हैं, वो करने के बाद में करते करते अल्लाह ताला ने वैसे करनी की दुआ से आधी उम्मत को बख्श दिया। फिर मेरे वैसे करनी ने सजदे से सर को उठाया, और उठाने के बाद में फिर दुआ की, है मौला अगर मैं और सजदे कर लेता तो तू बख्श दे, तो तेरी रहमत पे भरोसा है। और फिर इरशाद आया, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए वैसे करनी हमने आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्श दी है, और आने वाले टाइम में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। हमने आधी उम्मत तेरे दुआ से बख्श दी है, और आधी उम्मत गौसे आजम की दुआ से बख्शी जाएगी।